Hello class, good morning. We will continue linear inequality and some few results I mentioned here. Class, these are the results what I explained you in the topic function. Okay, and you have might be have remembered is that it is modulus of x. But these four results, which is very important for your finding the possible values of x. Okay, so these all things you have learned it. Firstly, it is modulus less than a, then x will be lying between minus a to plus a, right? And if it is equal to, then equal sign will become there. And modulus of x more than a, it is x less than minus x more than a, clear? And if it is equal sign is there, so equal sign we are going to take there, right? Okay, class. So after this class, these are the four results, simple things, and these all things I have explained you in if you remember. For example, x minus a and x minus b, okay, and it is less than 0, and a is less than b, okay. I explained you methods of interval. Methods of interval is very important. That this all things we will use here in solving of this question. Okay, so it is mentioned here. It is a and this is b and plus minus plus. Okay, it is negative. So x will be lying between a to b. So x will be lying between b to a, right? So class, this first result which is as same as this one. Okay, class. After this class, so few examples I mentioned here I am going to do. So the question is x minus 2 x plus 5 more than 2. Okay, and find the values of x. So first transpose 2 to this side. Now take LCM. Class, what the result I have explained you in the previous videos, we see that only all things we will use here in solving all the questions. Okay, class. So this is x minus 2 times x plus 5 more than 0. Okay, it is x minus 2 minus 2x minus 10 x plus 5 more than 0. It is minus x minus 12 x plus 5 more than 0. Okay, class, clear? And after this class, what I mentioned here, this is the x minus 12 and x plus 5. It is a rational function. What I explained you, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये जो x प्लस 5 है यहाँ ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस आप क्लास कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इट इज x प्लस 5 मोर देन 0. आप इसको जब x प्लस 5 के स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो x प्लस 5 विल कम हियर नेगेटिव x प्लस 5 x प्लस 12 एंड मोर देन 0. ओके, अब क्लास इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन विल रिवर्ट. ओके, अब दो ब्रैकेट है, यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. तो यहां पर क्लास आपकी x वैल्यू क्या आएगी? x प्लस कैसे निकालते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 5. रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे. तो ये माइनस 12 है, ये माइनस 5, प्लस माइनस प्लस. ओके, इट इज लेस देन 0. क्लास देखिए, ये पूरी चीज लेस देन 0 एरो, तो आप x कहां से लाई करेगा? x लाइन बिटवीन माइनस 12 टू माइनस 5. क्लास, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके क्लास, इट इज क्लियर? क्लास नेक्स्ट, मॉडुलस 3x minus 4 more than or equal to 9. अब हम इसको फॉलो करेंगे फ्रॉम द थर्ड पॉइंट. ओके, तो मॉडुलस 3x minus 4 more than or equal to 9, इसके जो रिजल्ट्स ये हैं, सो x आपका ये हो जाएगा. सो इट इज 3x minus 4 लेस देन माइनस 9. माइनस a यहां पर आप लेंगे माइनस 9, और मींस यूनियन. ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा 3x minus 4 लेस देन it is more than 9. From these two results we will find the value of x. उसके बाद उसको आप लेंगे यूनियन, it is the required answer. ठीक है, तो it is 3x plus 4 minus 9 minus 5 3x, x is more than minus 5 by 3.
this is the range of x from this relation, and or 3x 9 plus 4, 3x 13, x is 13 upon 3. Okay, so class sorry, sign has changed here. क्लास इसका मैं आपको एक ओरली बात बताऊं, ये जो आपका ये जो इसका सिंबल है, that should be open in one number toward the number, and in one inequality this sign should be open to variable. It is a sign is that देखिए मैंने क्या मैनेज किया प्रॉब्लम, मैंने एक मिस्टेक कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मिस्टेक से बेनिफिट हुआ कि मैंने देखा था कि क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे x मोर देन -3/5, वहां भी x मोर देन है, तो यहां पर लेस देन होगा, यहां मोर देन होगा. ठीक है, अब क्लास आई राइट x वन साइन, ठीक है, एंड मोर देन 30/3 and x is less than -5/3, less than -4/5. देखिए -5/3 है, अभी कहां पर होगा, ये आपका 1.6 समथिंग होगा. x इज लेस देन -1.6. ठीक है, इसको आप जब एक बार रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, इसको आप 0 1 2 -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां से अंडरस्टैंड हो पाएगा. एक ये ग्राफ फिगर में बना रहा हूं, तो x लेस देन -1.6 समथिंग. ठीक है, तो 1.6 समथिंग क्लास यहां पर होगा, यहां पे खोलो साइन बनेगा, एक आपकी रेंज ये हो गया. नेक्स्ट है x मोर देन 13/3. 13/3 का आपका क्लास होगा, ये आपका -5/3 इज 1 होल 2/3 हो गया, तो यहां से ये हो गया, लेफ्ट साइड आ रहा है अप टू -इन्फिनिटी. 13/3 को आप इसको मिक्स फॉर्म में रखें तो 4 होल 1/3, 4 प्लस में आ रहा है, तो यहां पर ये 4 हो गया, एंड अप टू +इन्फिनिटी 4 प्लस, मतलब यहां पर ये आपका आएगा ऑल ब्रैकेट एंड इट इज गोइंग अप टू +इन्फिनिटी. प्लस ये डिफरेंट रेंज है आपकी, इसको आप मिला नहीं सकते. ठीक है, तो इसका जो क्लास फाइनल आंसर होगा उसको आप बस ऐसे ही क्लास लिख देंगे, और ये इसका रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया. मैंने आपको लाइन से एक्सप्रेस किया था, तो x लेस देन -5/3 और x मोर देन 13/3, प्लस दिस इज द फाइनल आंसर. So now class, after this discussion I reached on the mid topic. The topic is we have to tell the feasible range, feasible area for the linear equation into variable. What is the meaning of feasible? Feasible means possible area. Okay, so class, some few things I am telling you. You see, I'll come on this topic. Before to start this question, some few simple things I am explaining you. Class, firstly, it is a very simple topic. There is no any big logic is there to be applied on this topic. So class, it is the x and y axis. Okay class, before to start, some few things I am telling you, just keep in mind. Thing is that for example, it is 1 2 -1 -2, it is 1 2 and -1 and -2 and so on. Okay class, after this if I say you the class, हम इक्वेशन एंड इनइक्वेशन हम दोनों को आपको एक पिक्चर में उसको हम पिक्चराइज करेंगे दोनों चीजों. फॉर एग्जांपल, इफ आई से यू x इज इक्वल टू 1, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ वन लाइन, x इज इक्वल टू 1, तो आप 1 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ इट इज फिनिश्ड, x इज इक्वल टू 1. ओके, सो क्लास x इज इक्वल टू 1 आपने लिख दिया. सो ऑन दिस लाइन, ये लाइन तो ये जा रही है ऊपर +इन्फिनिटी, ये नीचे आ रही है -इन्फिनिटी, और y एक्सिस ये एक्सटेंड करेंगे ना, x इज इक्वल टू 1. So all the points lying
on this line will satisfy this equation x is equal to 1 because this is a linear equation. Okay, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे all point will satisfy with this linear equation x is equal to 1. Understand? After this class अब हम क्या करेंगे, अब मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल x is more than 1, x is more than 1. अब ये क्या है, it is linear equation. Okay, it is linear equation, it is a linear inequation या अनइक्वल है, it is linear inequality और inequation व्हाट वी से. अब x मोर देन 1 है यहां पर. अब हमें यहां पर बहुत बड़ा सा एक रीजन मिलेगा, उस रीजन के अंदर उसको बोलेंगे आप फिजिबल पॉसिबल रीजन, फिजिबल रीजन. उस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट, जितने भी पेयर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, अब क्लास को कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग. अब देखिए, अब आपने x इज इक्वल टू 1 था. अब फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ दिस वन x इज मोर देन 1. इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे 2D प्लेन पर. एक तो हमारा यस्टरडे का एक्सप्लेनेशन था, हमारा प्रीवियस वीडियो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आप रियल नंबर लाइन पर अपने रेंज को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया. अब हम लोग यहां पर 2D फिगर में आ गए. अब 2 वेरिएबल्स को हम कैसे डील करेंगे. अब हम x इज मोर देन 1, अगर आप इसको रियल नंबर लाइन पर अपलॉट करेंगे तो आप 1 पे हॉलो करके और अब 2 प्लस इन्फिनिटी ड्रॉ हो गया. इट इज एन, ये है आपका 1D पर. बट अगर आप x मोर देन 1 को 2D प्लेन पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग यहां ही रन कर रहे हैं. ओके, और एज आई मेंशन हियर सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2D प्लेन, नॉट इन 1D प्लेन. ये 2D प्लेन पे हम लोग वर्किंग करना सीख रहे हैं. तो क्लास क्या करेंगे, आपको दिया है एक इनइक्वालिटी x इज मोर देन 1. आपने पहले इसको लेट किया x इज इक्वल टू 1. आपने एक लाइन बना दिया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया. क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखा आपने कि यहां पर इक्वल साइन नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इस लाइन में जो लाइन आपने ड्रॉ करी है इसमें हम यहां पर गैप्स कर देंगे. मतलब आपकी जो लाइन बनेगी वो बनेगी डॉटेड. ठीक है, तो मैं फिर से इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूं. x मोर देन 1, आपने लाइन ड्रॉ किया किस तरह से, आपने इसमें क्या कर दिया, इसे कर दिया डॉटेड. अगर होता x मोर देन एंड इक्वल टू 1 तो स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होती. क्या मीनिंग है, डिफरेंस क्या है, मैं बताऊंगा. तो पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया x मोर देन 1. इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए आप. This is the line, it is 1. Okay, it is the x-axis. All right. x more than 1 meaning is that अब हम इसमें इसकी जो शेडिंग हम करेंगे वो हम करेंगे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड. अब ये जो हमारी शेडिंग होगी इसमें क्लास जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ऑल पॉइंट विल सेटिस्फाई इन दिस इनइक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल अब ये रीजन किधर जा रहा है, ये रीजन इस पूरे एरिया. अब यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यहां पर पॉइंट ले लिया, आपने ये पॉइंट ले लिया 2,0. अब 2,0 अगर आप यहां प्लेस करें, क्या वो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है, हम चेक करें. तो अब लेकिन सर यहां पर तो x भी है एंड y भी है, यहां तो y नहीं है, प्रॉब्लम ये है. तो अब यह y कैसे लाए, तो इसका लाने का आइडिया क्या है, आपने क्या किया, आपने देखा 0.x प्लस 0.y प्लस x मोर देन 1. आप इसको आपने इस फॉर्म में लिखा. ये मैं क्लास आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको हर क्वेश्चन में करना नहीं है, ये खाली मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे ये ट्रू है, हाउ इट इज ट्रू. आप कैसे इसको मान लेंगे कि जो मैंने एक्सप्लेन किया ये ट्रू है. अब आपने लिया पॉइंट 2,0. अब 2,0 हमने इसमें प्लेस किया तो यहां पर x2 है, y क्या है, ये x y है ना, x2 and y0 put in the equation. So it is 0.0 plus 2 is more than 1. 2 is more than 1 plus ये true आ रहा है नहीं आ रहा है, it is true.
अब जब ये ट्रू आ रहा है, मीनिंग इज दैट कि हमारी जो शेडिंग है दिस इज करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यू टेक 0 and 0, यू टेक 0 and 0. अभी मैं इसका आपको और शॉर्ट वे बताऊंगा और सिंपल वे. अब जस्ट ओनली यू सी, अभी जो मेरी फिल्म चल रही है, जस्ट यू अंडरस्टैंड इट, आप उसको अंडरस्टैंड करिए, अभी टॉपिक और इजी होगा. ठीक है, अभी 0 and 0 है. अब ये देखते हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है. तो आपकी लाइन क्या है? लाइन है आपकी 0.5 प्लस एक्स इज मोर देन 1. अब यहां पर आपने पॉइंट लिया 0,0, मतलब यहां पर x and y both are 0. Put in this equation. So 0.0 plus 0 is more than 1. So 0 more than 1, this is false. क्या रहा है? It is false. And this is true. So we cannot do shading to left side because it is false. So origin will not contain in this region. Okay? तो क्लास यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर जो ओरिजिन है वो फॉल्स आ रहा है. अब अगर ये ट्रू आ रहा होता तो वो फॉल्स आ रहा हो तो ये शेडिंग इधर हो जाती, पर इट इज नॉट देयर. ओके क्लास, अंडरस्टैंड और नॉट? तो क्लास ये इसका आइडिया है कि आप कैसे इसमें शेडिंग करेंगे. आपको लर्न करना है कि हम लाइन ड्रॉ करके शेडिंग कैसे करें. अंडरस्टैंड? अब क्लास एक सिंपल मैं एग्जांपल और लेता हूं यहां पर. जैसे दिस एग्जांपल आई एक्सप्लेन यू, राइट? फॉर एग्जांपल I take another example. Y is less than or equal to 1. Okay? तो आप इसकी शेडिंग कर रहा है. मैंने क्या इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट 2D प्लेन पे मुझे इसको प्लॉट करना है. तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पर आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास. ये भी वही मीनिंग है, 0 into x 0 ही हो जाएगा. इस इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया. मैंने ग्राफ बनाया 1 2 -1 -2 and 1 2 -1 and -2, right? Thus it is -1 and -2. x less than or equal to 1. आप क्या करेंगे? इसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले आप इसको एक लाइन में चेंज कर लीजिए. y is equal to 1 लिखिए. सो फर्स्ट आई ड्रॉ द y is equal to 1. कहां पर होगा? यहां पर होगा. आपने y is equal to 1 लाइन ड्रॉ कर लिया. आपने क्या देखा? नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? ये y लेस देन 1 है, ये आपकी y एक्सिस है. अब इसके दो आइडियाज हैं. पहला आइडिया जो मैं आपको लर्न करा चुका हूं उसको मैं फॉलो करूंगा. y लेस देन 1 शेडिंग जब नीचे आप करेंगे तो यहां की वैल्यू y से 1 से लेस होगी. देखिए यहां पर y देखिए, y यहां पर 1 है, 0 -1 -2 -3. तो इसकी जो शेडिंग होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. दिस इज द रिक्वायर्ड शेडिंग फॉर y लेस देन और इक्वल टू 1. यहां पर इक्वल लगा हुआ है तो लाइन आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे. मतलब वो पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं और इस रीजन लाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी में सैटिस्फाई करेंगे. यहां पर क्या है? x मोर देन 1 ओनली, नॉट इक्वल. नॉट इक्वल में क्या करेंगे? लाइन शुड बी शेडेड. शेडेड का मतलब क्या हुआ? पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन विल नॉट कंटेन इन दिस लीनियर इनइक्वालिटी because it is not equal. तो not equal में shaded और equal में complete line. क्लियर? ठीक है? आप इसमें रखिए ओरिजिन. ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है. अब आपने इसको इस फॉर्म में चेंज किया. आपको देखना है कि whether it is coming toward the origin or away from origin. तो आपने इस इनइक्वालिटी में 0.00 एक्सप्रेस किया. तो आपने रखा 0 and 0. तो आपको मिल रहा है 0.0 प्लस 0 लेस देन 1. 0 इज लेस देन 1. इट इज ट्रू. क्लास ये ट्रू आ रहा है. अब जब ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग टुवर्ड द ओरिजिन. ठीक है? तो हम क्या डिसाइड कर लें? हम हर एक लाइन में जितनी भी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हम स्टडी करेंगे, सारे सिस्टम के अंदर हम ये चेक कर लें वेदर द ओरिजिन इज सेटिस्फाइड इन द फिजिबल रीजन और नॉट. अगर ओरिजिन ट्रू आ रहा है तो आप शेडिंग कर देंगे टुवर्ड द ओरिजिन. अगर ओरिजिन फॉल्स आ रहा है सो इट इज शेडिंग टुवर्ड द ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, टू द नेक्स्ट साइड ऑफ ओरिजिन. ओके क्लास, इस कॉन्सेप्ट पर हम और फर्दर प्रॉब्लम्स करेंगे. वन अनदर प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम आल्सो आई टेकन x plus y is less than 5, right? I am going to do first you understand the
simple concept of this linear equation. So few things are left. That is I'm just telling you. And you copy down all these examples what I explained you. So now class, the first problem, x plus y less than 5. Okay. First step क्या है? आप मेंशन करेंगे x plus y is equal to 5. पहले आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे on a 2D plane. क्लास आपको कोऑर्डिनेट कैसे लेना है? अब जैसे क्लास 9th में आपको जो आपकी टीचिंग थी वहां पर वो ये इस लेवल की थी कि यू टेक अप ऑन टेबल, टेक एनी 3 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लेना है. 3 पॉइंट भी आप ले सकते हैं, इट्स मोर अप्रोप्रिएट. उस 3 पॉइंट को आप पहले यहाँ पर प्लॉट करेंगे एंड सो ऑन. अब क्लास सिंपल वे क्या है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मैं लर्न करा रहा हूँ क्लास. ये टॉपिक बहुत मतलब कंप्लीटली फुलफिल यूज होगा इन द क्लास 12. हम जब स्टडी करेंगे एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे क्लास 12 में, तो वहां पर ये टॉपिक आपका यूज होगा. अब यहाँ पर आपने 2 पेयर फाइंड किए, x, 0 एंड 0, y. ये पॉइंट आपको ऑलवेज मिलेगा ऑन एक्स एक्सिस. क्लास को लर्न कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को यहाँ पर, ठीक है, आपको अभी लर्न कर लेना है. और दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस. ओके, आपने 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. अब यहां पर रखेंगे पहले y0, आपको x मिल जाएगा. जब y0 होगा तो x क्या होगा, 5 होगा ना. 0, x plus 0 is equal to 5, x is equal to 5. So the point is 5, 0, the first point on x axis. You see this point here, x is 0. तो आप क्या लेंगे, 0 plus y is equal to 5, y is equal to 5. So the point is 0, 5. Okay, these 2 points we will plot here. So 1, 2, 3, 4 and 5. क्लास आपके यहाँ पर आइडिया से वर्किंग करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 होता अभी, ठीक है. अब ये आपने क्लास 9th में 10th में स्केल लर्न किया होगा. कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम स्केल कैसे चेंज करते हैं, बट यहां पर कोई आपको स्केल मेंशन नहीं करना. आपको बस यहाँ क्या करना है, यहां पर आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है. तो अब यहां पर 0,5 है, तो क्लास एक पॉइंट आपका ये हो गया 5,0, ठीक है. 1, 2, 3, 4 and 5. This point is 0,5, right? So I join these 2 points. क्लास मैंने इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया. क्या यहां क्लास इक्वल नहीं है तो हम इसको कर देंगे डॉटेड. लाइन विल बी डॉटेड बिकॉज इट इज नॉट इक्वल. अगर ये इक्वल होता तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते. क्लियर, ये हो गया. अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप इस लाइन में करना, सेकंड स्टेप इस लाइन में ड्रॉ करना. थर्ड स्टेप में क्या है, मैं आपने कर लें. ये क्लास फर्स्ट स्टेप है, ये क्लास आपका सेकेंड स्टेप. यू टेक आउट द पॉइंट्स, राइट, एंड ड्रॉ द लाइन. इट इज द ड्रॉ द लाइन ऑन 2D प्लेन. इट इज थर्ड स्टेप. अब फोर्थ स्टेप क्लास क्या है, फोर्थ स्टेप है इस क्वेश्चन का, वो ये है, यू पुट 0,0. आप चेक करेंगे ओरिजिन से. कैसे ओरिजिन चेक करेंगे, देखिए जैसे यहां पर आपको x plus y less than 5 दिया गया है. आपने लिया 0,0, मतलब कि ये x है और ये y, मतलब x भी 0, y भी 0. आपने इसको यहां प्लॉट किया तो x की प्लेस में 0 आया एंड y प्लेस में 0 आएगा, राइट. तो 0 इज लेस देन 5. 0 is, so it is true or false? It is true. This is true. When it is true, then we do shading toward the origin, as in this way. क्लास ये आपका रिक्वायर्ड शेडिंग हो गया, ठीक है. अब क्लास इस लाइन में, लाइन आपकी एक्शन होगी ना अप टू इंफिनिटी. जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहां पर, ऑल पॉइंट विल सेटिस्फाइड हियर. तो हम शेडिंग किधर करें, टुवर्ड द, देखिए यहां पर ये मैंने इस पूरे लाइन को 2 प्लेन में डिवाइड कर लिया ना, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन. तो इसकी शेडिंग हो गई टुवर्ड द ओरिजिन. व्हाई, बिकॉज़ इट इज ट्रू. अगर ये फॉल्स होता तो मैं क्या करता, मैं शेडिंग उस साइड करता. Does you understand? Okay, class, this is the required solution, required graphing for this linear inequality.
Now class, question number 7. Class, the same thing we will do here, right? And first we take out the point 3x plus 2y is equal to minus 6. Okay, take 2 point x comma 0 and 0 comma y for plotting the line on a 2D plane. So when y is 0, so minus 3x is equal to minus 6, x is 2. The point is 2 comma 0. Next point 0 comma y. So 0 plus 2y is equal to minus 6 and the y is minus 3. Point is 0 comma minus 3. Okay. Now plot it on the point. It is 1, 2, 3, minus 1, minus 2 and so on. Y 1 and 2. It is minus 1, minus 2 and minus 3. Okay. So this point is 0 comma minus 3. This point is 2 comma 0. Now we take the, now we have 2 points. Okay, join them, but here the equal sign is there ना, equal यहाँ पर inequality में आप इसको मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया. अब इसके बाद क्या करना, हमारी स्पीड थोड़ी और फास्ट हो गई ना, because all concepts we have been studied, we have been learned. Now we come in a good speed. अब इसके बाद क्या क्लास क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें रखना है 0 and 0. ठीक है, minus 3 multiplied by 0 plus 2 into 0 more than or equal to minus 6. It is 0. 0 plus 0 0. 0 is more than minus 6. The answer is true. It is true. So the drawing will be toward the origin. अब क्लास इसकी जो शेडिंग होगी वो इधर होगी. This is the feasible region. Okay class, it is the origin O. This is the required shading for this inequality, and all question will be done in the same way. Okay, if it is coming false, any one question we may take. For example, one answer small problem I am taking class. Yeah, just first you draw this one. Now class, I take the question x plus y is more than 5. Okay, so plot it for this point 1, 2, 3, 4 and 5. The points will be x plus y is equal to 5. First take out the point. Points will be 5, 0. अभी क्लास इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं, बट वहां पर 5 मोर देन था, यहाँ पर 5 हमने लिया है लेस देन. ठीक है, and the next point we will take here. So these 2 points and their equal sign is not there. लाइन को आप शेड कर देंगे. ठीक है, now put the 0 and 0. 0 plus 0 is more than 5. 0 more than 5, this condition is false. 0 more than 5, condition is false. So we do shading away from origin. क्या ऐसा होगा इस shading as in this way. ठीक है ना, ओरिजिन के अपोजिट साइड लाइन जो होती है ना, लाइन 2D प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट. ठीक है, तो अब ये कुछ भी आप लेट कर लें, इसको फर्स्ट लेट कर लें, इसको आप सेकंड लेट कर लें, तो ये सेकंड पार्ट में इसकी शेडिंग हो जाएगी. ओके क्लास, बिकॉज़ कंडीशन इज फॉल्स.